ناظرین، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے انسان سے بات کی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اچانک میری نظروں کے سامنے ایک واقعی، اگر اس بیان کو سن لیتے ہیں تو آپ کی پریشانی کا حل مل جائے گا، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑا سا وقت نکال لیں، بڑا اصلاحی بیان ہے اور اس بیان کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں میرے ساتھ۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے انسان سے بات کی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، تم میں سے کون ہے جو غور کرے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اندر، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا بیان ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ جو کتاب آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں کتنا بیش قیمتی خزانہ ہے، اور اگر انسان جان لے تو خالق حقیقی کے آگے دل سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مختلف دھاتیں جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے پلانٹ سے آئی ہیں، جیسے کہ لوہا جو لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنس نے یہ فیکٹ آج ڈسکور کیا ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل سٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ بالکل جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسان کی باڈی کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہیں۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ یہی فنگر پرنٹس انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہیں، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لگایا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے، وہاں آپ یہ راز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فیمیل سپائڈر جب بچے پیدا کرتی ہے تو میل سپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی مدر یعنی فیمیل سپائڈر کو مار دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے کمزور اور برا گھر ہے جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سائنس ایک عرصے سے مانتی چلی آ رہی تھی کہ شاید صرف میل سپائڈرز ہی گھر بلڈ کرتے ہیں، لیکن سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ گھر صرف فیمیل سپائڈرز ہی بناتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے وہاں اس آیت میں فیمیل سپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ اسپیس کی بات کریں تو ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو 2 سٹارز کو آربٹ کر رہا ہے۔ اس پلانٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ دیکھے جاتے ہیں۔ اس پلانٹ کا نام سائنس نے کیپلر 16b رکھا ہے۔ اس پلانٹ کی ڈسکوری 2011 میں کی گئی،
मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। इस प्लैनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरत की तरफ ले जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। नाजरीन, सूरज जो हमारे इस सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ज़मीन पर तवानाई का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हाइड्रोजन का सिंबल H है, जिसे अरेबिक में हा कहते हैं। अब कुरान पाक की तरफ अगर चलें तो कुरान पाक में शम्स के नाम से एक मुकम्मल सूरत है और शम्स का मतलब सूरज है। सूरह शम्स की टोटल आयात 15 हैं और इस सूरत की हर आयत लफ्ज़ हा पर ख़त्म होती है। इस सूरत को कुरान पाक में 91 नंबर पर रखा गया है और हैरानगी की बात यह है कि साइंस इस चीज़ को कबूल करती है कि सूरज इस यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था। अगर आप सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला देखें तो वो भी 91.4 माइल्स है। कुरान पाक का ये न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर आपको मज़ीद हैरान कर देगा कि ज़मीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और अगर इस सूरत की आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मज़ीद हैरानगी की बात यह है कि सूरज की कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है, जितनी इस सूरत की आयात हैं। दोबारा स्पेस की बात करें तो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनकी आंखों की विजन ब्लर हो जाती है, यानी वो ज्यादा गहराई में नहीं देख पाते और वहां इनकी नजर ज्यादा डेप्थ परसीव नहीं कर सकती, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को स्पेस अफेक्ट करती है। साइंस ने ये बात आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले लिखा गया था। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 पर गौर करें तो अल्लाह फरमाता है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक़्त इसमें चढ़ जाते, फिर भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हो। 1400 साल पहले विजन का स्पेस में ब्लर होना सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात बनाई हो। नाजरीन, साइंटिस्ट्स ये बात आज दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इंसानी हड्डियों का पत्थर या लोहे में तब्दील होना आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा जा चुका है। सूरह बनी इसराइल की आयत 49 और 50 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमा दो कि पत्थर हो जाओ या लोहा। आज से 1400 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो इस कायनात का खालिक अकबर है। नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है और वो सीने में जकड़न महसूस करते हैं। ये फैक्ट भी साइंस ने आज दरियाफ्त किया है, जबकि कुरान पाक ने इस फैक्ट को 1400 साल पहले लिखा है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर करें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात जान लें कि साइंस ने 17th सेंचुरी में एक रोसेट नेब्यूला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। इस नेब्यूला की बनावट और कलर बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान पाक की सूरह अल-रहमान आयत नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। कुरान पाक जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बयान है। ये कुरान पाक 1400 साल पहले इंसानों और जानवरों में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बता चुका है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-ज़लज़ला पर गौर करें,
और शुरू से इसके लेटर्स को काउंट करना शुरू करें तो 46वां लेटर लफ्ज़ इंसान पर आएगा और इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। नाजरीन, बंदर में क्रोमोसोम्स की तादाद 48 है और सूरह बकरा की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो लफ्ज़ किरादत तक 48 लेटर्स बनते हैं और किरादत बंदर को कहते हैं और बंदर में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही है। शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और सूरह नहल की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो 16 लेटर्स लफ्ज़ अल नहल पर कंप्लीट होते हैं और नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहा जाता है और शहद की मक्खी के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16 ही है। नाजरीन, घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 64 है और सूरह अल इमरान की इस आयत के लेटर्स को अगर काउंट किया जाए तो 64वां लेटर लफ्ज़ वल खेल पर कंप्लीट होता है और खैल अरबी में घोड़े को कहते हैं और घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 64 ही है। नाजरीन, गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 62 है और सूरह जुमा की इस आयत में लफ्ज़ गधे के बाद 62 लेटर्स ही हैं जो गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के ऐन बराबर हैं। ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 74 है। इस आयत में जब हम लफ्ज़ जमल पर पहुंचते हैं तो 74 लेटर्स मुकम्मल होते हैं जो कि ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के ऐन बराबर हैं। नाजरीन, 1400 साल पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन खालिक हकीकी के अलावा कोई नहीं दे सकता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन कुरान पाक का एक छोटा सा टुकड़ा है। नाजरीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना टेक्नोलॉजी इतने अरूज पर थी। इंसान अल्लाह को उसकी निशानियों के ज़रिए पहचानता है और अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपनी निशानियां रखी हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके होने की खबर दे रहा है। इंसान को ज़रूरत है तो सिर्फ गौर व फिक्र करने की, इसीलिए गौर व फिक्र करने वाले के दर्जात भी अल्लाह ने बुलंद फरमाए हैं। इस कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे पैटर्न्स और राज रख कर भेजे हैं कि जिन्हें इंसान जान ले तो कुर्ब इलाही तक पहुंच जाता है। इस किताब में ऐसे ऐसे असरार और रमूज हैं कि इंसान खुद की पहचान कर लेता है और जो खुद को पहचान जाता है वही अपने रब को पहचान जाता है। कुरान पाक के ऐसे मज़ीद पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और कुरान पाक को समझने की कोशिश करते रहें। अल्लाह करीम आप पर करम का साया बनाए रखे। अल्लाह हाफिज़।